اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، وعدے کے مطابق میں پارٹ 2 لے کر آیا ہوں۔ بیچارے مفتی کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے، یعنی اس کے گلے میں ایک ایسی ہڈی اٹک گئی کہ وہ نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد صرف اتنا ہے، آپ آئیڈیو سنیں گے تو اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اشرف علی تھانوی نے جو اقرار کیا ہے ملفوظات حکیم الامت میں کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی، پھر کمالات اشرفی میں اقرار کرتا ہے کہ میں دعوت اور ہدیے میں زیادہ نہیں دیکھتا، یعنی سب کھا جاتا ہے، یہ حرام کا جو بھی ملتا ہے اشرف علی تھانوی کو سب کھا جاتا ہے۔ تو اب ان کا ایک اصول بھی ہے کہ اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے، وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اب جتنے بھی دیوبندی ہے، اگر وہ حرام کھاتے ہیں تو دیوبندی ہیں، حرام کا کھاتے ہیں تو دیوبندی ہے، اگر حرام کا نہیں کھاتے ہیں تو دیوبندی نہیں ہے۔ تو یہی بات جو ہے ہم کو عوام کو دکھانا ہے، سمجھانا ہے کہ ایک تو یہ اس کو مجدد بھی مانتے ہیں، پھر ان کی عبارت اگر ہم ڈائریکٹ ان کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں تعویل کریں گے کہ نہیں وہ عاجزی انکساری ہے۔ بھائی عاجزی انکساری کہاں ہے؟ وہ تو اپنی پوری زندگی کا وہ بتا رہا ہے کہ پہلے تو باپ دادا کی کھائی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور دعوت ہدیہ ملتا ہے تو میں اس میں بھی حرام والا حلال نہیں دیکھتا۔ تو یہ عاجزی کہاں ہے؟ عاجزی کسی کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے آگے خود کو حقیر سمجھنا، صحابہ اکرام کے آگے خود کو حقیر سمجھنا، کسی ہم مفتی یعنی کہ جب میں بھی مفتی ہوں، سامنے والا بھی مفتی ہے، تو اس کے آگے میں خود کو حقیر دکھاؤں، چھوٹا دکھاؤں، تو اسے کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عاجزی انکساری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی زندگی کی کہانی بتا رہا ہے کہ پہلے اپنے باپ دادا کی کھائی، اب وہی سلسلہ جاری ہے، اب دعوت اور ہدیے میں حرام اور حلال نہیں دیکھتا۔ تو اب جو حرام اور حلال کھاتا ہے، یعنی اشرف علی تھانوی کو جو مجدد مانتا ہے، وہ حلال اور حرام کھاتا ہے تو ہی دیوبندی ہے، ورنہ وہ دیوبندی نہیں ہے، ورنہ اشرف علی تھانوی کو لات مارو یا دیوبندیت کو لات مارو۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ کر آئیڈیو سنیں، اور چلیے اب آئیڈیو سنیے۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کل بات ہوئی تھی نا اپنی؟ ہاں بولیے۔ جی وہ جو مولوی تھے نا ان کو لایا ہوں میں، میرے ساتھی ہے اس وقت۔ تو میں جو چیپٹر بھیجا ہاں جی حضرت، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی، وہ جو چیپٹر بھیجا آپ نے، ہاں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی ایسی جو ہے عقیدے کی اور اعمال کی کوئی خرابی ہے۔ ہاں یہ انہوں نے دیا تھا، میرے بازو میں ہی کھڑے ہیں یہ، لیجیے ان سے بات کیجیے۔ نہیں، اس میں پورا چیپٹر سمجھنا چاہیے اپن کو۔ ہاں اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی تھی کہ دین پر کوئی خلل یا نقصان نہ آئے خطرے کے اعتبار سے۔ زندگی کے گزارنے کے دو پہلو ہیں، سمجھ میں آپ؟ ہاں ایک عظیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ اچھا، ایک جی عظیمت ہے اور ایک پہلو رخصت ہے۔ ہاں تو اگر ایک آدمی عظیمت اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، 100%۔ اور ایک ہے کہ رخصت جائز جواز کی لائق، تو وہ رخصت کہلاتا ہے، تو اس پہ بھی عمل کرنے کا حکم ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں تو بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اور جو چیپٹر ہوتا ہے کسی کتاب کا کوئی مضمون ہوتا ہے اس کو پورا پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم 3 بار پڑھنا چاہیے۔ صرف 1 لفظ یا 1 لائن پڑھ کے نہیں اپن سوچیں گے کہ یہ فائنل ہوگا۔ اچھا، اس لیے حدیث میں ہے بخاری مسلم، میں دعا کے اعتبار سے بھی مضامین لکھا ہوں اور بھیجوں گا حدیث کے۔ حدیث میں ہے کہ ہر الفاظ کو کم سے کم بندہ اللہ سے 3 بار کرے، نہیں 1 بار پڑھ لیا صاحب نہیں، انہوں نے 2 حوالہ بھیجا تھا نا، ہو گیا بار نہیں۔ حدیث میں ہے کہ کم سے کم جو ہے 3 بار کہے ایک دعا کو۔ حضرت انہوں نے ایک حوالہ اور بھیجا تھا ملفوظات کا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں۔ تو 3 بار کا مطلب کیا ہوا کہ سے کرر سے بات ایجا تقرر،
बात में तकरार होती है, इकामत तस्लीम होती है, जो दिल में उतरती है वो सही उतरती है। दूसरी बात ये है कि आज़ाए मगसूला वजू में 3 बार धोने का हुक्म है, सुन्नत है, है नहीं? हाँ, अरे मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं सोच रहा था कि आप उनको थोड़ा समझा देते कि वो जो वो मौलवी साहब को, कि वो जो एक आदमी का जो नजराना लेते हैं, वो जो गैर शरई काम करते हैं, तो आप तो वो आए हैं क्या? हाँ हाँ, मैं वही तो कब से आपको कह रहा हूँ, आप लीजिए उनको थोड़ा समझा दीजिए। हाँ हाँ, आए हैं, मैं दे रहा हूँ उनको फोन, लीजिए बात कीजिए। हाँ मुनव्वर साहब। जी जी, सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। क्या इसमें क्या नाम नहीं है ना? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, अच्छा। हाफिज है, आलिम है, कारी है, क्या है? जी, मैं कारी हूँ और किताबों का मुताला भी कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। अच्छी बात है, यही मुज़ाकरे और मुबाहिसे से जिंदा रहता है। शेख शादी का फरमान है कि इल्म बगैर मुज़ाकरे और बहस के, माल बगैर तिजारत के, बगैर सियासत के नहीं रुकता। तो फजीलत कहाँ से आपकी खिरत की? ये इलाहाबाद से है, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, वहाँ बैतुल मारिफ भी है ना कोई ऐसा? जी, इलाहाबाद में एक बैतुल मारिफ भी है। ये होगा शायद, मैं उधर नहीं था, मैं इधर पराऊ करके गाँव शहरी है माशाल्लाह। इलाहाबाद का सबसे पुराना इदारा है बैतुल मारिफ, सबसे पुराना इदारा है ना? ठीक है। आप वतनियत का ताल्लुक कहाँ से है कारी साहब? जी, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, कटिहार जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कटिहार के हमारे थे मौलाना मिनहाज साहब, दारुल देवबंद में। जी, मौलाना मिनहाज साहब नंबर 45 हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो वो कटिहार के। हजरत ये अभी आपसे बात कर रहे थे। जी, बताइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मुद्दे की बात हो, तो वो बात ऐसी निकल रही तो है। हजरत ये जो हैं, ये एतराज कर रहे थे किसी ये जो है चंद चीजों पर, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि भाई हमारे जो हजरत मुजद्दिद साहब है, तो उनका जो है फरमान मौजूद है कि दावत और हदिया में हलाल और हराम को ज्यादा नहीं देखते हैं। तो ये कह रहे थे कि मैं इनसे यही कह रहा था अभी, मैं इनसे यही कह रहा था कि जो बात लिखी है उसमें चैप्टर में, उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने गलत नहीं लिखा है, बाकी ये है कि अगर अपन को मालूम हो जाए, खबर सही हो, जैसे भाई बता रहे हैं, या अपन को इल्म हो जाए कहीं से जरिए से कि भाई फला की आमदनी सही नहीं है, फला का कमाई की लाइन सही नहीं है, जब अपन को तहकीक हासिल हो जाए तो क्या है कारी साहब, अपन लोग जो है सफी अव्वल के लोग हैं, समझ रहे हैं? हेलो जी, मैं तो जी, मैं तो ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मैं बिल्कुल जो है छोटा सा इंसान हूँ, मामूली सा। मेरी बात तो सुनिए, वो सब, अरे वो सब बात अलग है, आप मेरी बात तो सुनिए। जी बताइए, मैं जो कह रहा हूँ आप इसको समझिए। जी बताइए। हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, इमाम हो, मौज़िन हो, मुदर्रिस हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, समझ रहे हैं? जी, हम लोग क्या है, अव्वल के लोग हैं। जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हम लोग क्या है, कोई भी हो, सफी अव्वल के लोग कहलाते हैं, समझ रहे हैं? जी बोलिए, आप बोलिए।
صف اول کے لوگ کہلاتے ہیں، تو اسی حساب سے اپن لوگ کو زندگی بھی سیر کرنی چاہیے. باقی ضروریات تو اللہ پوری کرتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ چاہے میں ہوں یا آپ کو یا بھائی ہو، اگر کوئی ایسی بھی خبر مل جائے کہ صاحب فلاں کی آمدنی جو ہے وہ کھلم کھلا ناجائز ہے، کمائی ناجائز ہے، تو پھر اپن کو بچنا ہے ان سے. وہاں پہ اپنی ضد یا تعلق کو جگہ نہ دے کر کے للہ جو ہے اپن کو بچنے میں ہی فائدہ ہے. تقویٰ اور نہیں معلوم ہے تو پھر تجسس بھی نہیں کرنا ہے، جاسوسی بھی کرنا ہے. اگر لا علمی کی حالت میں کچھ آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے یا تحقیق بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ جو حضرت تھانوی نے لکھا ہے جی، تجسس کا حکم نہیں ہے لیکن تحقیق کا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تحقیق کا حکم کہاں ہے؟ یا تحقیق کا حکم بھی نہیں ہے. یہاں تحقیق کا حکم تو ہے ہی نہیں ہے. ہمارے جو مجدد صاحب ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ دعوت اور ہدیہ میں حلال اور حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا، یعنی تحقیق وغیرہ نہیں کرتا. جو آیا بس وہ قبول کر لو، جو ملا وہ کھا پی لو، اس لیے کہ میں متقی نہیں ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، متقی نہیں ہوں تو یہ عاجزانہ جملہ ہے. وہ آگے بھی لکھا ہے نا کہ اگر ایسا عمل ہو جس سے ہمارے دین پر کوئی نقص پیدا ہو رہا ہو خطرے کی روح سے، یہ لفظ تو ہے. تقویٰ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حلت نہیں حضرت، نہیں وہاں ہے کہ اسے میں جائز سمجھتا ہوں. کس کو؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہوگا. جائز سمجھ، بس جو فتویٰ فقہی روح سے جائز ہو اسے جائز سمجھتا ہوں. تو یہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، فقہ کے اعتبار سے صحیح ہے. نہیں ہے حضرت، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو یہ جو پہلی لائن ہے نا، یہ کہہ رہا ہے جہاں پہ بریکٹ میں نشان مارا ہوا لال ریڈ کلر کا. ہاں بولیے نا بھائی. فرمایا کہ دعوت اور ہدیہ میں حلال اور حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں ہوں. جی میں متقی نہیں ہوں اس لیے زیادہ نہیں دیکھتا ہوں. آگے لکھا ہوا ہے کہ بس جو فتویٰ فقہی روح سے جائز ہو اسے جائز سمجھتا ہوں. ہاں تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ تو یہ تو جو جائز سمجھ جو یعنی فقہ کرام نے جس چیز کو جائز بتایا اسے جائز سمجھتا ہوں، لیکن حلال اور حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا. حالانکہ حلال اور حرام کا معاملہ تو بہت ہی احتیاط والا معاملہ ہے. نہیں میں متقی نہیں ہوں، اس کو آپ کس طرح لے رہے ہیں؟ تو مطلب نہیں اگر میں متقی نہیں نہیں یہ مطلب یہاں تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ میں متقی نہیں ہوں، مطلب حلال اور حرام کو نہیں دیکھوں گا اس لیے کہ میں متقی نہیں ہوں، تو حلال حرام کو بھی نہیں دیکھوں گا، دیکھتا ہی نہیں. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ اس کو غلط روپ دے رہے ہیں، اس کو غلط روپ دے رہے ہیں آپ. اس الفاظ سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ صاحب علت و حرمت کے اعتبار سے میں متقی نہیں ہوں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو آپ لے رہے ہیں. جیسا چشمہ لگائیں گے آپ ویسا نظر آئے گا. اتنی بڑی شخصیت سے ایسا اپن گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. حکیم الامت ایسے نہیں ملے وہ، اور حکیم الامت ایسے بھی خطاب مل گیا ان کو. خبر ہے آپ دیکھیے ہم لگائیں گے حضرت. آپ بھی میری بات بھی تو آپ سنیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت بڑے مجدد ہیں اور ان جیسا عالم ان کے زمانے میں کوئی نہیں، لیکن یہ بات تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اس کا، جو بالکل واضح ہے کہ حالانکہ حلال اور حرام یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن و حدیث میں صاف واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. بالکل. لیکن ہمارے اتنے بڑے مجدد ہو کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں زیادہ نہیں دیکھتا ہوں؟ نہیں چیز کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ جو متقی ہے وہ متقی تو عاجزانہ نہیں حلال حرام اس کو میں حلال حرام سے منسوب نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ حلال اور حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے.
ये हलाल और हराम में तो बहुत पकड़ेंगे ना, एहतियात आप चाहिए। लफ्ज को पकड़ेंगे, अगर आप लफ्ज को समझेंगे तो आप उधर ही चले जाएंगे। यहाँ पर मफहूम वो नहीं है कि भाई हम जासूसी करें या उसके बारे में ज्यादा अंदर घुसें कि ये हलाल है कि हराम है। मुकल्लफ अल्लाह ने इंसान, एक आदमी जो है, एक मिसाल में दे रहा हूँ आपको, एक काजी के पास, आपके पास दो गवाह फर्जी और एक लड़की को लेकर लड़का लेकर आता है। अब वो दोनों गवाह झूठ गवाही दे रहा है कि ये लड़की इस लड़के की बीवी है। क्या समझे? सब अमल झूठा है, लेकिन फर्जी गवाह कह रहा है ये लड़की औरत जो है बीवी है। तो काजी क्या पक्का देगा, क्या मसला करेगा? आप, मैं आपकी बात, इधर आवाज आपकी कट रही थी, साफ नहीं आ रही थी, दोबारा बोलिए। तो उसका मकसद ये नहीं है जो आप ले रहे हैं, उसका मकसद नहीं है कि हलाल हराम की मैं परवाह नहीं करता कि मैं हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझते हुए इस्तेमाल करो, ये मकसद नहीं है उसका आप और उस लफ्ज का। नहीं, ये मैं भी नहीं, समझने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ हजरत। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि दावत अगर मिल जाए तो इस चीज को नहीं देखते हैं कि ये हलाल का है या हराम का। अगर हदिया मिले तो कबूल कर लेता हूँ, नहीं देखता हूँ कि ये हलाल का है या हराम का। ये मफहूम तो है ना, बाकी समझना तो एक अलग चीज है। हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपन को, आप इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, अपन पीछे अपने अगर इल्म आ जाए या कोई हमारे हमदर्द साथी खबर दे सही, जिसके ऊपर अपन को भरोसा है कि हमारे शेरशाह हैं, और किसी का पता चल जाए, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में, तो मुझे अगर पता चल जाए कि इसकी कमाई सही नहीं है या जासूसी कारोबार है, फिर अपन को वहाँ से बचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपने ईमान आखिरत का हो जाए। मैं कह रहा हूँ, देखिए हजरत, देखिए बाजात तो जासूस पर तहकीक नहीं करी, लेकिन अगर कोई मोतबर खबर और जरिए से पता चल जाए तो फिर अपन को बचने ही तो बेहतरी है, क्योंकि अपने ईमान अमल का और मसला है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर के लिए आप यही तो मुझे पता चल जाए, आपने बता दिया कि मुफ्ती साहब ये सूदी कारोबार है या इनकी कमाई आउट है, डूबा सकता है, तो फिर वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? जब तहकीक हो जाए, खबर मिल जाए, इतना बेहतर है ना। जी जी, देखिए जी, और अगर ये दावत मजबूरी में दावत, तो फिर ये हुक्म है कि कुछ आप हदिया ले लो के लिए, एक पपीता ले लो, 1 किलो सेब ले लो, ताकि आपके लुकमा का बदल हो और हराम लुकमा वो आपको अंदाज न करे। ऐसा है कि मतलब बचने का हीला मजबूरी में, मतलब आपने के गिला, अगर मतलब अगर ये अंदेशा हो कि अपने लोग नाराज हो जाएंगे और वहाँ पे जो है हराम जो है पका हुआ हो, है, जाना है, मजबूरी है, तो जानबूझकर हम जो है कुछ लेकर के चले जाएं और वो हराम खा लेंगे, तो मतलब जैसे कि इसके बारे में हदीस पाक में आया है कि दुआ कबूल नहीं होती है तकरीबन 40 दिन। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ने मजबूरी में एक शक्ल बताई है, क्या वो नियत करके वो ले लो कि उसका बदल हो जाएगा, आप उस लुकमे में जाके आपने अपना ही वो खा के आ गए, वो बदल हो गया। आप जितना कर सकते हो कर लो, और ऐसे कर सकते हैं, उलमा ने इसकी इजाजत दी और लिखा है। अच्छा, ये कहाँ है, किस किताब में लिखा है उलमा ने हजरत? कि जैसे कि कहीं पे जो है अपनों के यहाँ हराम पक रहा हो तो आप जो है हलाल लेकर के जाएं और बदल दे करके जो है हराम तनावुल फरमा लें। हराम पकड़ा हो नहीं भाई, उसकी कमाई आउट है, जुआ सकता है, सूद ब्याज है और मजबूरी है, रिश्तेदारी है, तो ये तो वाज़ेह है, ये तो वाज़ेह है हजरत, ये तो वाज़ेह है कि भाई वो जुए की कमाई है जो सही हराम है, तो अगर वो सूद की कमाई है तो आला दर्जा नहीं है, क्यों आला जाए, बच्चे हिकमत जबरी इख्तियार कर ले, मैं भी आना सकीम, लेकिन नहीं, आप मैं बीमार हूँ। जी जी, पहली दर्जे की बात तो यही है ना, ईमान का आला दर्जा। जी जी, है कि नहीं? लेकिन अगर बदर्जा मजबूरी ही बन जाए कि भाई उससे फितना या बुराई बढ़ सकती है, ऐसी मजबूरी में इसकी गुंजाइश है। अब ये नहीं कह रहे कि जायज है उसका जानबूझ के आराम था, ये नहीं कह रहा हूँ, गुंजाइश है कि अगर ऐसा कर ले तो उसके
उस लुकमे का बदल हो गया, अल्लाह उसको बचा लेंगे इस हिसाब से। देखिए गुंजाइश है, लेकिन ये तो जहाँ तक मामला है तो ये रुखसत और अजीमत वाला जो मामला है ये तो उस वक्त है जब ईमान खतरे में पड़ जाए, जान खतरे में पड़ जाए। हाँ, कि भाई अब जान बचना मुश्किल है तो वहाँ पे रुखसत है, लेकिन यहाँ तो अपना यहाँ नहीं, यहाँ तो आप अपनों को नाराज करने के चक्कर में, अपनों को खुश करने के चक्कर में बता रहे हैं कि रब रसूल को नाराज कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रुखसत वाला रास्ता आप जो कह रहे हैं कि सूद वाले के यहाँ जा करके खा लो, जुआरी के यहाँ जा करके खा लो, मजबूरी अगर ताल्लुक ऐसे नहीं, ये क्या बुराई वहाँ पे आप क्या करेंगे? ये नहीं, देखिए हजरत ऐसा है ना कि बुराई से जो है, बुराई को रोकने का 3 दर्जा है, ये आपको भी मालूम होगा कि पहले अगर ताकत आप रखते हैं तो उस ताकत का इस्तेमाल करके रोकिए, नहीं तो फिर जो है आप जबान से रोकिए, अगर उससे भी नहीं रोक सकते तो आप उससे दूर हो जाइए, बुरा जानिए उसको। बिल्कुल। आप तो यहाँ रुखसत वाला मामला आप तो रुखसत वाला मामला निकाल रहे, तो फिर सदी से पाक का क्या होगा? नहीं तो रुखसत है कि नहीं शरीयत में? मैं तो रुखसत हम मानते हैं रुखसत है, लेकिन वहाँ जहाँ पे आप रुखसत का ताल्लुक नाजायज से नहीं भाई, आप उसको रुखसत के नाजायज में ले जाइए कि नाजायज। जी नहीं, मैं नाजायज नहीं कह रहा, मतलब ये होता है कि तकवा और तकवा के बीच का जो रास्ता है जायज के दायरे में, वही है। जी जी, देखिए रुखसत तक तो ठीक है, लेकिन रुखसत का इस्तेमाल कहाँ पे होगा इसका तयन भी करना तो जरूरी है ना भाई। जायज जब शरीयत इसको जायज कर रही है वही। अच्छा मैं हेलो, अच्छा मैं कुछ बोलूं बीच में एक 2 सेकंड के लिए? हाँ बोलिए। हाँ बोले मुफ्ती साहब, मैंने इनके पास आपके पास इसलिए इनको लाया था कि इनको हराम खाने से रोका जाए, लेकिन आप तो रुखसत ही बता रहे। नहीं तो रुखसत का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इनको ये जो मैं चाह रहा हूँ हजरत दर्जे में हो, हजरत मैं चाह रहा हूँ कि ये हराम की कमाई खाना बंद कर दीजिए। ये कमाई मैं नहीं आएगा वो। नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप रुखसती का इंतजाम कर रहे हैं इनका, और मतलब और इनको ढकेल रहे हराम खोरी में। नहीं अपनी ज्यादा रुखसत का ताल्लुक जायज वाले बेटर से है, नाजायज वाले से नहीं है। नहीं तो इनको जो है एकदम भी बंद ही करवा दीजिए, मैं वापस मुल्क पर डाल रहा हूँ, बंद करवा दीजिए इनका वो खाना। हाँ, सबसे अव्वल के लोग हमारे जब जहाँ तक हो सके नाजायज है, मैं बोलूँ तो बिल्कुल 100% हलाल पे ही आना पड़ेगा, जायज पे आना पड़ेगा। नहीं हजरत, आप कह रहे कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, और हमारे इतने बड़े मुजद्दिद, मैं उनका मानूं या आपका मानूं? वो तो कह रहे हैं कि मैं हलाल और हराम को ज्यादा नहीं देखता हूँ, आप कह रहे बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दो, बंद तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनकी अगर आपको खटक रही उनकी बात है या उनके अल्फाज आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने इत्तेबार से क्या फैसला लेंगे और क्या सोचेंगे हलाल हराम के एतबार से? आप किसी की इत्तेबा करेंगे या अपने लिए नमूना जो है वो आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो आप मुझे बताइए, तो क्या हमारे इतने बड़े मुजद्दिद उनको कुछ नहीं आता है? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जाए? अरे आता नहीं आता मतलब नहीं, अगर आपके दिल में बात खटक रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए वही है जो शरीयत है। तो आप उनके पीछे नहीं चलेंगे, बिल्कुल मना कर दो, बिल्कुल रोक दो। चलिए साहब, वो जो करेंगे हम भी वही करेंगे, अपने से नमूना नहीं है तो हमारे मुझे देखिए हजरत, मैं एक मिनट बोलूं हजरत, 1 मिनट में बोलूं? देखिए हमारी एक किताब है, उसका नाम है कि मसलक देवबंद, किसी फिरके का नाम नहीं है, अहले सुन्नत का नाम है। उसमें हमारे जो है आलिम, जो मोतबर आलिम दीन है, उन्होंने लिखा है कि जो हमारे अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलेंगे वही देवबंदी कहलाने के हकदार है, जो उनके नक्शे कदम से हट जाएंगे वो मसलक देवबंद में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, आप इसको किस तरह ले रहे हैं, मैं बताऊँ आपको? बताइए। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। उलमाए देवबंद हो या कोई भी हो, देखिए देवबंद कोई फिरका जमात नहीं है,
उलमाए देवबंद का हम अगर वजाहत करें जो लफ्ज में, तो वो ये है कि जो अहले सुन्नत वल जमात कोई नक्शे कदम पर हो, अहले देवबंद का कोई नक्शे कदम खुद का धराती नहीं है। नहीं हजरत, जो अहले सुन्नत वल जमात का पैरोकार है वही उलमाए देवबंद हो सकता है। अच्छा हजरत, तो क्या उलमाए देवबंद का कोई मिशन या प्रोग्राम या कोई मसलक और मजहब और रास्ता नहीं है। जो हजरत मेरी बात आप समझे नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे वही वो बात नहीं समझे सकते हैं, और वही उसके नक्शे कदम पे चलने वाले को मसलक के देवबंद कर सकते हैं। मैं आपको सुना रहा हूँ, इबारत भी सुन ले हजरत। आप अगर हमारी इस्लाह कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे ये भाई साहब हमको लेकर के आए हैं। नहीं ना, आप सुनाइए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किताब का नाम है मसलक देवबंद, किसी फिरके का नाम नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का नाम है, ठीक है। अब उसमें इबारत ये है कि जो अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम से हट जाए, उनके नक्शे कदम पर न चले, वो जो है मसलक देवबंद जो है ये अहले सुन्नत इससे हटा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इतने बड़े आलिम मुजद्दिद हैं, वो कहते हैं कि हलाल और हराम को मैं ज्यादा नहीं देखता। अब मैं नहीं देखता हूँ, मैं उनके नक्शे कदम पर हूँ, और आप तुले हुए हैं कि मैं जो है अपने बड़ों के नक्शे कदम को छोड़ दूं और आपके फतवे को मानने चलूं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आप बताएं मुझे। मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे। मैं सब बात आपके जवाब दे चुका हूँ कि मसलक देवबंद के नक्शे कदम पर न चलने का मतलब ये है कि वो अहले सुन्नत वल जमात से हटा हुआ है। फिर नक्शे कदम अहले मसलक देवबंद के ऊपर चलने का मतलब यही हुआ कि वो अहले सुन्नत वल जमात का पाबंद है। अब इसमें हजरत थानवी हो चाहे कोई भी हो, मैं हूँ आप हो, अगर हमारा कदम उन कदम से मिल रहा है तो गोया के अहले सुन्नत वल जमात के कदम से मिल रहा है। जहाँ तक आपने ये जो लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मफहूम हरगिज वो नहीं है जो आप ले रहे हैं, ये उसका मफहूम हरगिज तो नहीं। अब मैं सुनिए हजरत, तो मसलक देवबंद वाला मैं ही बना ना, मैं हूँ ना, क्योंकि मैं उसमें है कि अकाबिरीन, जो हमारे अकाबिरीन में एक अकाबिर अशरफ अली थानवी है और वो हमारे मुजद्दिद है, तो मैं उनके नक्शे कदम पर हूँ। नहीं, अगर आप जिस तरीके से इस इबारत को समझ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस इबारत का वो मफहूम मतलब नहीं जो आप ले रहे हैं। अच्छा हजरत, मुझे आप समझा दे। देखिए, कोई अगर मुझे दावत दे, ठीक है, तो एक तो ये है कि मुझे पता ही ना हो बिल्कुल उसके बारे में, तो वहाँ तो हलाल और हराम का शायबा तक नहीं आता, हाँ, ख्याल तक नहीं आता हलाल और हराम का। लेकिन अगर अब दावत मुझे मिली, तो अब अंदेशा अगर है तो फिर तो मुझे तो करना पड़ेगा ना तहकीक। हाँ बिल्कुल। तो यार हलाल हराम, अब हलाल हराम की जो बात है, तो भाई हलाल और हराम ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, और इसको जो है अहमियत न देना, इसमें एहतियात न करना, ये तो ठीक नहीं लगता है मुझे भी। लेकिन क्या करें कि हमारे मुजद्दिद का ये फरमान मौजूद है, तो हमारे लिए रुख्सत है यहाँ पे। नहीं, इसको फरमान नहीं कहेंगे, इसको मुफर्रदात कैसे क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपके सामने बात नहीं आई है तो हदिया की बात है। दावत से काम एक अलग चीज है, दस्तरखान, और हदिया एक अलग चीज। अब एक आदमी मुरादाबाद से आ रहा है, एक आदमी दिल्ली से आ रहा है, एक आदमी मद्रास से आ रहा है, वो कुछ भी आ रहा है, ये मीटर में ये बात जाएगी, सेट होगी, ना कि दस्तरखान पे। आमतौर से आदमी को मालूम होता है कि फला का क्या है। दावत काम और दस्तरखान वही लोग देते हैं जो पैसा का कोई दावत काम करता है, मोहल्ला पड़ोस समाज। तो मैं भी ऐसा दावत काम मैं भी ऐसा करूँगा। बात ही अलग होगी जब आदमी बाहर से आया है, सऊदी से आया है, आप वो लेकर आ गया है, अब उसके पीछे अपन को भागना नहीं है कि साहब ये कैसा है, क्या करना है, क्योंकि हम उसके मुकल्लफ भी नहीं है, कर भी नहीं। की बात है न कि दस्तरखान और काम की बात है। और आज की बात जो जनाब ने बताई है वो यही है कि हदिया तोहफा। जी, देखिए, हदिया तोहफा जो है मैं ले लेता हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं जांच पड़ताल नहीं करता, चाहे वो कोई शराबी हो, जुआरी हो, सूदखोर हो,
मैं किसी का भी ले लेता हूँ, तो क्योंकि तहसील में तो आप उसको बोल भी नहीं सकते ना कि जुआरी है ये, आपको तहसील के लिए बोल तो आपके लिए हमारे लिए जायज नहीं है वो। इसीलिए बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि जुआरी है, कारोबार है, आपको ये आप बोल रहे हैं कैसे ले सकते हैं। हाँ, ये तो उसका कल है, ये कुछ पता ही नहीं है अपन को, लेकर आ गया। यहाँ कहा हजरत, यहाँ कहा है कि तहकीक करो, क्यों हम तहकीक करने जाए? जो हमारे पास आ रहा है वो भी जाए। ऐसे तो ऐसे बोल रहे हैं रहेगा ना। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि एक आदमी सूदी कारोबार है, जुआरी है और लेकर आ रहा, तो मैं तहकीक क्यों करूँ, मैं ले लूँ। ये बात अलग हो गई। नहीं, मैं ये बात अलग हो गई। साहिबाना को लेकर जितने शख्स आ गए आपके पास, आप नहीं कर सकते, न छानबीन कर सकते। बम्बई से आ गया, मद्रास से आ गया, दिल्ली से आ गया, उसके मुताबिक ये बातें सेट होंगी, ना कि आपको मालूम है और फिर लेकर आ रहे हैं और आप ले रहे हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो ये तो बात अलग हो जाएगी ना। हमारे मुझे जो है हजरत और रूम का यह मेहमान है। सुनिए, दो बात है, एक तो ये है, एक ये भी है कि जो है मुफ्त खोर हूँ मैं, और मुफ्त खोरी में मेरी जिंदगी कट गई है। कुछ लोग हमें बुरा भला कहते हैं, तो आखिर में भी मुफ्त इन्हीं लोगों के जरिए से मुफ्त में हम वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। तो यही हमारा तरीका है, ये इशार है हमारा। हम चाहते हैं कि दुनिया में भी हम जब तक रहें तो मुफ्त खोरी में हमारी जिंदगी कट जाए, और आखिरत में भी जब हमें दुनिया में लोग बुरा भला कहें तो आखिरत में भी उनसे कुछ मुफ्त में मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। नहीं, ये आपका सोचना है और इसके मुताबिक अमल है तो नहीं तो सोच कैसे गलत। जी हजरत, जद्दीद का ये अमल है हजरत। अगर आपको ये बात करने में क्या है उनके हजरत अब्दुल्ला साहब, एक मिनट रुकेंगे आप? और वो फला बुजुर्ग क्या कह रहे थे, फला बाबा क्या कह रहे थे? हजरत आप अपने खुद का आकलन कीजिए, आपकी हजरत इन्होंने ना एक हवाला और पेश किया था, मलफूजात हकीमुल उम्मत का। सुन रहे हजरत? बोलिए। हाँ, इन्होंने एक हवाला और पेश किया था, उसमें है कि इन्होंने लिखा है कि मेरी सारी उम्र मुफ्त खोरी में कटी। ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात हकीमुल उम्मत का लिखा हुआ है कि पहले तो बाप की कमाई खाई, फिर बीच में बहुत थोड़े दिनों तक तनख्वाह पे गुजर हुआ, फिर उसके बाद फिर उसी सिलसिला मुफ्त खोरी का जारी रहा। यानी मुद्दत से नजरानों पर गुजर है, ना कुछ करना पड़ता है, खाना खाने को दोनों वक्त मिल जाता है। अब बताइए, ये इन्होंने ये हकीमुल उम्मत का ही भेजा है ये भी, और ये इस पर अड़े हुए, आप देख रहे कब से आप इनको समझा रहे, लेकिन इनको जो है आराम का लग गया है इनकी जुबान पर, नहीं छूटने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है अपन 100% नहीं कर सकते किसी के बारे में ऐसा। नहीं, देखिए दो हवाला, एक क्या हदिया तोहफा के तरह समीर साहब। हाँ जी इंसान के जी, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे अमल को गलत साबित कर दे। आप किसी भी आप दारुल देवबंद से किसी को लेकर के आ जाए, मेरे अमल को कोई गलत नहीं साबित कर सकता, क्योंकि मैं असली देवबंदी हूँ, अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर हूँ। मैं असली देवबंदी हूँ और मैं इस पर हवाला दे सकता हूँ, और कोई भी जो है नाम के मुल्ला आकर के मुझे जो है झांसे में नहीं ला सकता और मुझे गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अमल मेरे मुजद्दिद का अमल है। भाई आप कितने बड़े हम को लेकर के आ जाए। नहीं, सुनिए भाई, सुनिए, आपका ये बोल भी गलत है, सोच भी गलत है, लफ्ज़ मुजद्दिद जो आप बार कर रहे हैं। मैंने सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपका कोई ठेका नहीं दिया है हिदायत देने का, मेरा कोई ठेका लिया है देने का। ये तो आदमी का ईमान और ज़मीर बोलता है साहब। हम आपको क्या जानते हैं, हमारा बाप नहीं, हमारा ठेकेदार नहीं है, हमारी आखिरत, हमारा ईमान, हमारे मुजद्दिद की आप तो हमारे लिए सिर्फ हमारे मुजद्दिद आका है, मदनी है, बस
बोल करके कि हमारे मुजद्दिद मुझे शक हमारे मुजद्दिद का और ही है। नहीं सुनिए, बोल दूंगी। नहीं सुनिए हजरत, सुनिए। नहीं भाई, हम तो आप तो हमारे मुजद्दिद साहब को आप तो बदनाम कर रहे हैं। कहना चाहते हैं, सुनिए हजरत, आप मुजद्दिद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ठेकेदार है क्या? अच्छा तो मुजद्दिद नहीं है क्या? मुझे जन्नत को घसीट के ले जाएंगे, मैं तो तुम कर दो। आप उनको मुजद्दिद नहीं मानते, जैसा आपको समझ वाला आप करिए। तो भाई हम ये क्या पढ़िए ईमान हम दलाइल से समझाऊं बात जो थी। आपकी जिंदगी, आपका अमल, आपकी आखिरत, आपकी खबर, आपका जवाब। मैं फंसूंगा तो मुझे मतलब आप ये कहना चाहते कि हमारे मुजद्दिद भी फंसेंगे? फिर वो जाने, अल्लाह जाने। अगर वो फंसेंगे तो मैं भी अगर वो फंसेंगे तो मैं भी फंसूंगा। अगर वो पार हो जाएंगे वो नहीं तो पार हो जाऊंगा। आप उसको फंसा, तो मैं क्यों फंसूं? कैसे फंसा रहे हैं? वो फंसा रहे। हम उसके नक्शे कदम पर हम उसके नक्शे कदम पर हैं। वो हमारे साथ हम फंस जाएंगे। ये बोली और सुनिए, नहीं सुनिए, हम ये बोल में आप फंस जाएंगे। मैं उनके नक्शे कदम पे हूँ, साहब मैं उनके नक्शे कदम पे हूँ। आपको बात समझ में गलत लग रही है आपको, आपके वो बात और उसका ये बोल गलत है, तो आप उसे बताइए ना भाई। आपके हिसाब से गलत, मेरे हिसाब से गलत कैसे? आपके हिसाब से गलत है ना? नहीं। आप उन्होंने लिखा तो मैं भी वही कर रहा हूँ। इनको छोड़ देते हजरत, इनको छोड़ देते इनके हाल पर। हमारे जो ले रहे हैं वो गलत अंदाज में ले रहे हैं। नहीं इनको छोड़ दो। तो ये ले रहे हैं। हाँ, ये दो हवाला पेश कर रहे हैं और उन्हीं के पीछे लगे हुए। हाँ जी हाँ। आप कितने भी बड़े मौलवी को लेकर के आ जाइए, मुझे गलत नहीं साबित कर सकता। गलत साबित हो सकता है, मुझे गलत नहीं साबित कर सकता। अगर आपको और समझ में आ रही है तो आप अमल कर सकते हैं कि वो शरीयत और सुन्नत कुरान चलिए मैं रख रहा हूँ, मेरे वो थोड़ा काम आ गया है। हाँ मुझे थोड़ा काम आ गया है। समीर साहब, नहीं मुझे थोड़ा सा काम हो गया, मैं काटने वाला हूँ। जल्दी बोलो जो बोलना। एक मिनट खाली मेरी बात सुन लो, 1 मिनट। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि रुखसत और अजीमत, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने रुखसत को तस्लीम किया, लेकिन अब रुखसत को भी तस्लीम नहीं करेंगे और कहते हैं कि अच्छा बोली हमारे जो मुजद्दिद हैं वो सही है और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला मकाम निकालता है गलत है। क्या पता अरे आप ही तो अभी समझा रहे थे इतनी देर से, अभी आप ही जो है अब यही के मजबूरी में कुछ भी आपका। अच्छा तो काफी शादी के रुखसत है कहाँ? नहीं, रुखसत शरीयत के हिस्सा है ना, रास्ता है। नहीं वो आपने इनको बताया था ना शुरू में कि भाई सेब और आम लेके जाओ अगर कहीं हराम पकता हो तो। वो उनकी बात कर रहे हैं। रुखसत इन्होंने खुद बताया। हाँ, अगर कोई लेके आ रहा है तो अगर ये पता लगे कि नहीं वो नाराज हो जाएगा या हमें मार देगा, दबदबा उसका है, तो जो पैसे दे रहा है इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, रख लो दोनों। तो रुखसत तो है, तो हमारे एतबार से तो ठीक है और आपके एतबार से भी ठीक है। फिर आप ही इधर से बात को कर रहे हैं। नहीं जाने दीजिए, बात खत्म नहीं होगी। आप नहीं समझेंगे, छोड़ दीजिए हजरत, इनको छोड़ दीजिए। खाइए भाई, आप जितना आपको खाना है खाइए। नहीं आपको जो हाँ खाइए, आपको हम भी खाएंगे। नहीं जाइए आप। मुझे भी हजरत, मुझे भी दवाई लेने जानी है, दवा खाना बंद हो जाएगा तो मैं रख रहा हूँ हजरत। मैं भी, मुझे दवाई लेने जानी है, मुझे दवा खाना बंद हो जाएगा, मैं फोन रख रहा हूँ हजरत।